Hello students, in the last class we have seen the types of hybridization. Okay, today we will start with the topic that is dipole moment. Before starting this, let us see the polarity of covalent bond. Okay, what do you mean by that? When the covalent bond is formed between two similar atoms, for example H2, Cl2 or O2, here the covalent bond is formed between the two similar atoms. So, this is the shared pair of electrons. Okay. When the shared pair of electron in this case lies in between the two atoms and both have the same electronegativity. In such case, this electron, this shared pair of electron lies in between the nuclei. If this is the nuclei of the two bonded atom, that means it lies in between the two nuclei of the bonded atoms. We are the shared pair. Okay. And such bond is called the non-polar covalent bond. It is called the non-polar covalent bond. But at the same time, if the covalent bond is formed between the dissimilar atom, different atoms like this, here it is having the electronegativity difference. Here chlorine is more electronegative compared to hydrogen. So, in this case, this shared pair of electron, it is more attracted towards the more electronegative elements, that is towards chlorine, and because of this electron moves towards the chlorine. Because of this will acquire a partial negative charge and hydrogen will acquire a partial positive charge. And since the covalent bond was there, but now it is not totally 100% covalent. Now, here some ionic character develops. Okay. Here we can say polarization takes place. Two electrical dipoles are there. Okay. Such bond is called the polar covalent bond, because the two electron here they are not experiencing the similar attraction. It is the attraction is more towards the chlorine. Okay. So, here electrical dipoles develops, two electrical dipoles develops, and the polarity of such bond is measured in terms of dipole moment. So, today we will see the next, that is the dipole moment. What do you mean by dipole moment? Okay, denoted by the symbol mu, M-U, mu. Okay. This is what do you mean by dipole moment? Actually, it is the product of the magnitude of positive or negative charge and the distance between them. Like this is the dipole moment. What is this? This is the product of the charge on any one atom, it may be positive or negative, into product of the charge and distance between the charges, that means distance between the ions, that is called the dipole moment. Okay. And this dipole moment it is expressed in dB. Okay. And 1 dB equals to 3.33564 into 10 to the power minus 30 centimeter. Okay. And this dB here it is used to express the dipole moment of the molecule, and here dipole moment is a vector quantity. Okay. And how we will show the dipole moment, depict the dipole moment? For example, if HCl is there, if the bond is there, and here the dipole moment is depicted by the arrow pointing towards the more electronegative elements. ठीक है, तो ऐसे more electronegative elements की तरफ आप dipole moment को show करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने show किया. ठीक है. And remember here it is used for measuring the polarity, this dipole moment, how much polar the given molecule is. Okay. Now, let us see the dipole moment of a diatomic molecule. Diatomic molecule such as same, now only I have written HCl. That means here a dipole moment has two atoms bonded to each other by a covalent bond. This is a covalent bond. Okay. And in such molecule the dipole moment of the bond also gives this is the dipole moment of the bond, and this gives the dipole moment of the molecule, क्योंकि एक ही है तो dipole moment उसका जो dipole moment होगा molecule का dipole moment भी वही होगा, and the dipole moment mu is equals to 1.03 dB. It is the dipole moment of a molecule as well as dipole moment of the HCl bond. But in case of a polyatomic molecule,
In case of polyatomic molecules means when more than 2 bonded atoms are there, a polyatomic molecules has 2 bonded atoms and they are bonded by covalent bond, and the dipole moment of here, the dipole moment of individual, for example carbon dioxide का ले लीजिए, H2O का ले लीजिए, BF3, this is a triatomic, this is triatomic, that is tetraatomic. In this case ये तो शो हुआ कोवेलेंट बॉन्ड. द डाइपोल ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड्स, this is the dipole moment of individual bond, this is the dipole moment of individual bond, and this dipole moment is referred to as bond dipole. Okay, and the dipole moment of the molecule depends on the orientation, in which direction the dipole moment is orienting. Okay, and the dipole moments depend on that. For example, let us see, take the case of carbon dioxide. Here the dipole moment of carbon dioxide is found to be 0, but in the same time the dipole moment of H2O is not equal to 0. Why it is so? Both are triatomic, but they are not so. The dipole moment of H2O, that means it is equals to 1.83 dB. The reason is that the orientation water का जो molecule already structure, it has a bent structure, and the dipole moment कहाँ से कैसे बनाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो हमें क्या करना है, ऐसे बनाना है एंड यहाँ एक कट करना है. ओके, टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐसे बना दिया. इन दिस केस कार्बन जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रो, तो उस तरफ पॉइंट किया. इन दिस केस यू विल फाइंड इट हैज़ ए लीनियर स्ट्रक्चर, यहाँ पे लीनियर स्ट्रक्चर है, एंगल इज 180 डिग्री. तो एक दूसरे जो दोनों बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड जो है बॉन्ड डाइपोल है, कैसे है, बॉन्ड डाइपोल इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन. अगर इसका जो वैल्यू होगा, फॉर एग्जांपल इसका जो वन डाइपोल मोमेंट जो है, एक बॉन्ड डाइपोल है, इट इज इक्वल्स टू 3 डी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. वन डाइपोल मोमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का जो है, एक का जो है मोमेंट जो है 2.3 है, डिबे है. दूसरा का क्या होगा, सेम होगा बट ऑपोजिट होगा. तो क्या हुआ, दोनों कैंसिल हो गया. तो करके डाइपोल मोमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फाउंड टू बी 0. यहाँ पे जो बॉन्ड डाइपोल, यहाँ पे एंगल जो है इसका जो है 104.5 डिग्री है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इन वाटर इट हैज़ अ बेंट स्ट्रक्चर इन विच 2 OH बॉन्ड जो है ओरिएंट एट एंगल 104.5 डिग्री एंड देयरफॉर दे डू नॉट कैंसल्स ईच अदर. दोनों जो है कैंसिल आउट नहीं करते हैं. रीज़न क्या है, दोनों सिमिलर डायरेक्शन में. ठीक, और they are not linear, they are bent structure. Okay, now let's take the case of BF3. Bond dipole moment of this one is equals to 0. ठीक है, तो अब ये 0 कैसे हुआ, let make the structure F F F F, ये हो गया. It is triangular planar structure it has. तो यहाँ पे जो dipole moment we will make it ऐसे towards more electronegative element, towards more electronegative elements and towards more electronegative elements. In this case the bond dipole of the two, sum of the two is equal but opposite to the dipole of the third. That means इन दोनों का सम या इन दोनों का सम जो है थर्ड का इक्वल है बट ऑपोजिट है. बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, कैंसल्स ईच अदर. तो दो का सम और तीसरे के सम के बराबर है और ऑपोजिट है, तो क्या होगा, दोनों का आंसर क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा, लेकिन एक प्लस है तो एक माइनस साइन में होगा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते. तो इस केस में भी क्या होगा, डाइपोल मोमेंट ऑफ BF3, दैट इज वाई द डाइपोल मोमेंट ऑफ BF3 इज 0. ओके, नाउ लेट टेक द केस ऑफ अमोनिया. कंपैरिजन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अमोनिया और NF3 के बीच में, NH3 एंड NF3 के बीच में. In both the case you will find that nitrogen is there containing the same number of lone pair. Nitrogen जो है यहाँ पे है, हाइड्रोजन पिरामिडल स्ट्रक्चर, ऑलरेडी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन थ्योरी में हमने पढ़ा था, इट हैज़ अ पिरामिडल स्ट्रक्चर. ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हियर. यहाँ इन दिस केस NF3 सेम F F F एंड द लोन पेयर. ठीक, अभी यहाँ पे क्या होगा, पहले बॉन्ड डाइपोल बनाते हैं, डाइपोल मोमेंट बनाते हैं. ठीक है, दिस इज अ बॉन्ड डाइपोल इंडिविजुअल का बना दिया एंड हियर इट इज डायरेक्टिंग, क्योंकि नाइट्रोजन और फ्लोरीन के कंपेयर में फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन, ओरिएंटिंग डाउनवर्ड. तो यहाँ पे ऐसे है. एंड रिमेंबर इन केस ऑफ दिस वन, दिस इज द ऑर्बिटल डाइपोल बिकॉज ऑफ लोन पेयर.
इट इज़ ऑलवेज टूवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और लोन पेयर हमेशा नेगेटिव है तो इट इज़ टूवर्ड्स द लोन पेयर। यहाँ पे भी सेम होगा, इट इज़ टूवर्ड्स द लोन पेयर। Okay, in this case, and in this case you will find that the dipole moment of NH3, the dipole moment of NH3 is equals to 1.46 dB, whereas in case of NF3, dipole moment of NF3, it is found to be 0.25 dB. Why it is so? Even though we know that the NF, the bond, this is the difference in electronegativity is more in this case compared to NH. Then why the dipole moment of this one is less than that of ammonia, NH3, NH bond. ठीक है, तो ऐसे क्यों हुआ? Why it is so? The reason is that in NH3 the orbital dipole due to lone pair is in the same direction as that of the resultant dipole moment of the 3NH bond. ठीक है, यहाँ पे 3 NH बॉन्ड है और इन तीनों का जो NH बॉन्ड का जो डाइपोल है किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स द ऑर्बिटल डाइपोल ड्यू टू लोन पेयर, तो सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ में क्या होगा? डाइपोल को क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू टेक द सम ऑफ ऑल द 4, तो सम ऑफ ऑल द 4 लेते हैं तो डाइपोल मोमेंट हमें ज़्यादा मिलता है, मोर मिलता है। दैट मीन्स द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ द 3NH बॉन्ड इज इन सेम डायरेक्शन compared to the orbital dipole moment due to lone pair. So here the total dipole moment is more, whereas in this case you will find that यहाँ पे कहाँ पे कैसे डायरेक्शन में देखिए, यहाँ पे उल्टा डायरेक्शन में जो 3NF जो बॉन्ड है वो जो है नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो दैट मीन्स डायरेक्शन इज ऑपोजिट। सो द हियर द रिजल्टेंट द 3NF बॉन्ड इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द ऑर्बिटल डाइपोल ड्यू टू लोन पेयर। तो यहाँ पे जो है 3 का जो सम है इसे सब्ट्रैक्ट करना होगा हमें, तो आंसर वी आर गेटिंग द लेस आंसर कंपेयर टू दिस, दिस इज द रीज़न। तो अच्छी तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा नीट में भी एग्जाम में भी आता है, डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये तो था। नाउ यू हैव सीन व्हाट आयोनिक जो है कैरेक्टर कैसे कोवेलेंट बॉन्ड में डेवलप हुआ, ठीक है। फुली जो कोवेलेंट बॉन्ड जो है फुली कोवेलेंट बॉन्ड ना रहा। ओके, नाउ यू विल बी सीइंग द नेक्स्ट, दैट इज द कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड। अभी कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड, हाउ कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड। Okay, and remember here ionic bond बोलते हैं तो here we should remember two oppositely charged ions, two oppositely charged ions, one is positive and one is negative. When these two ions come closer to each other, what happens? This positive ions, this cation, it is going to distort the electron cloud of the negative ion towards itself. ये जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, तो डिस्टॉर्शन होगा। डिस्टॉर्शन होगा तो नेगेटिव चार्ज जो है एक तरफ डिपॉजिट होना शुरू होगा, ठीक है, डिस्टॉर्ट होना शुरू होगा। एंड व्हाट हैपेंस? दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स गेट पोलराइज्ड एंड इट स्टार्ट्स लाइंग, इट लाइज बिटवीन द, एट फर्स्ट क्या था? नेगेटिव, एक के पास पॉजिटिव था, दैट मीन्स वो टोटली क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, नेगेटिव चार्ज वहाँ इलेक्ट्रॉन जो है पूरी तरह नेगेटिव एनायन के पास चले गए। नाउ व्हाट हैपेंस? जब नज़दीक है, टू ऑपोजिट चार्ज नज़दीक है, तो पॉजिटिव चार्ज जो कैटायन है वो क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने लगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव, और वो कहाँ पे आ गए? इन बिटवीन द टू एटम्स। अभी इन बिटवीन द टू एटम्स मीन्स व्हाट? कोवेलेंट बॉन्ड डेवलप्स। दैट मीन्स इन सच केस the ionic bond does not remain 100% ionic. In such case some covalent character develops. Okay, and this character is how the distortion take place depends on the power of cation. Okay, the power of, that means ionic bond कैसे develop होता है, किसके ऊपर depend है? Power of cation to cause distortion, to cause distortion. Okay, and this is called the polarizing power. Polarizing power. Okay, polarizing power of cation means what? The power of cation to cause distortion. कितना वो distort कर सकता है नेगेटिव आयंस को, जितना ज़्यादा कर पाता है, that means
that much covalent character will be formed. Okay. Or secondly, depends on the ability of the anion, ability of anion to undergo distortion. That is called polarizability. Okay, polarizability means what? Polarizability in terms of anion को देखना, polarizing power in terms of cation को देखना. Polarizability means what? The ability of the anion to undergo distortion. कितना वो अपने आप को distort कर सकता है, ठीक? And this extent of covalent bond in ionic bond, okay, depends on the polarizing power of the cation and polarizability of the anion, and which is decided by one rule, that is called, one of the important rule, that is called the Fazan's rule. Fazan's rule. So what do you mean by Fazan's rule? अभी Fazan's rule क्या कहता है? Remember, smaller the size of cation, cation का size जितना smaller होगा, smaller size of cation, more will be the polarizing power. जितना ज़्यादा छोटा होगा कैटायन का साइज कंपेयर, तो उतना ही ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगा, उतना ही ज़्यादा वो डिस्टॉर्ट कर सकता है नेगेटिव एनायन को. दैट मीन्स अगर आपको क्वेश्चन आ गया विच हैज़ मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, लिथियम क्लोराइड और KCl, तो व्हाट विल बी द आंसर? एनायन दोनों का सेम है, तो एनायन को आपको देखना नहीं है, यू हैव टू सी द कैटायन. तो कैटायन में किसका साइज छोटा है, उसमें पावर ज़्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा. तो यहाँ पे किसके साइज छोटा है? लिथियम, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम. तो यहाँ पे लिथियम जो है पहले आया, देन कम्स द पोटेशियम. ओके, तो दैट मीन्स लिथियम क्लोराइड हैज़ मोर कोवेलेंट कैरेक्टर देन कंपेयर्स टू KCl. रीज़न क्या है? बिकॉज लिथियम हैज़ स्मॉलर साइज. जो कैटायन जो है Li प्लस जो है, इसका साइज जो है छोटा है कंपेयर टू K प्लस का साइज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जाम्पल CuCl, okay, NaCl, both have almost the similar cationic size. दोनों का जो है cationic size सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है. तो इस केस में which has more polarizing power किसका होगा? The one which has the pseudo noble gas configuration. तो pseudo means आपको पहले से पढ़ा, pseudo means not real, not actual, ठीक है. तो यहाँ पे जो है नोबल गैस कन्फिग्रेशन, अभी हम इसके देखेंगे. तो कॉपर 29 एटॉमिक नंबर अगर एक लूज करता है तो इट हैज़ अ कन्फिग्रेशन दैट मीन्स 3D10, ओके, 4s1. ओके, आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन, पहले क्या था इसका, यहाँ पे लूज किया तो इट इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि कॉपर का था. यहाँ पे क्या है, कॉपर किस फॉर्म में है? Cu प्लस फॉर्म में, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है लूज कर दिया. दैट मीन्स इट हैज़ द कम्प्लीटली फिल्ड कन्फिग्रेशन है, बट इट इज़ नॉट नोबल गैस कन्फिग्रेशन. बट इन दिस केस सोडियम का कन्फिग्रेशन वी नो दैट इट इज़ 2p6 के बाद आएगा 3s1, लेकिन यहाँ पे Na प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया, 0 हो गया. दैट मीन्स इट हैज़ द नोबल गैस कन्फिग्रेशन. एक कन्फिग्रेशन किसका अटेन किया है? नियॉन का जो है कन्फिग्रेशन अटेन किया है. सोडियम हैज अटेन द कन्फिग्रेशन ऑफ नियॉन, ओके, वेयरएज दिस वन डू नॉट अटेन द कन्फिग्रेशन ऑफ एनी नोबल गैस एलिमेंट्स. तो यहाँ पे जो है ये है स्यूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन. दैट मीन्स CuCl हैज़ द, इन दिस Cu हैज़ द स्यूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन, बट हियर Na हैज़ द noble gas configuration. So here we can say that CuCl is more covalent than compared to NaCl. Why? Because Fazan's rule has said that among the two cations of similar size, the pseudo noble gas configuration has the larger polarizing power. Okay, and now let's see the next. ये तो था cation के बारे में. Now let's see for the anion. Anion का size कैसे होना चाहिए? Anion का size कैसे होना चाहिए? It should be larger. Larger the size of anion, larger the size of anion, higher will be the polarizability. ठीक है, क्या होगा? Higher होगा, क्या होगा? Higher will be polarizability. ठीक, example lithium iodide,
and lithium fluoride. Which one will be more covalent इस केस में? Which one has the more tendency to get polarize itself? Polarizability किसका ज़्यादा है? यहाँ पे कैटायन तो सेम है, तो कैटायन नहीं देखेंगे, विल सी फॉर द गो फॉर द एनायन. तो एनायन में किसका साइज छोटा है? इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है, क्योंकि फ्लोरीन, देन कम्स क्लोरीन, देन ब्रोमीन, then comes the iodine. That means iodine का size moving down the group, size increases. Atomic radii increase होगा तो size भी increase होगा. तो iodine is having greater size. तो यहाँ पे जो है I minus का जो है greater size है compared to F minus का. So Li is more covalent. This one is more covalent than that of LiF. Okay, students. So this is about the Fezzian's rule. You should remember it. Okay. Now we will see the next, that is the molecular orbital theory. Okay, what do you mean by the molecular orbital theory? In the molecular orbital theory, we can say it as MOT. Okay, VBT valence bond theory. Valence bond theory में कुछ limitations था, जैसे कि it cannot explain the paramagnetic behavior of O2, क्योंकि magnetic valence bond theory में हमने देखा एक जो बॉन्ड है दूसरे बॉन्ड के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो दोनों में जो है एक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता था, दूसरे में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता था, दोनों ओवरलैप करते थे. ठीक है, तो वहाँ पे क्या था, हर केस में हमने देखा कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, बट वी नो दैट ऑक्सीजन O2 इज पैरामैग्नेटिक. तो ये कैसे हुआ? दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय द नेक्स्ट थ्योरी, दैट इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. And inertness of nitrogen, that also not explained by valence bond theory. It does not explain about the formation of coordinate bond, that is dative bond between the atoms. So we will go for the next theory, that is the molecular orbital theory. What do you mean by that? Molecular orbital theory, according to this theory, the atomic orbitals combine to form molecular orbitals. Okay, and the number of molecular orbitals that formed is equal to the number of atomic orbitals involved in this theory. Okay, involved, remember. That means जितना atomic orbital combine हो रहा है, molecular orbital theory means molecule जो है, molecules के जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे रहेंगे? In the molecular orbital में रहेंगे. और जो molecular orbital में कैसे आएंगे? By the combination of atomic orbitals के जो इलेक्ट्रॉन है, they combine होगा, then they will form the molecular orbital. Okay, now let's see इसके salience feature देखने से पहले let's see the example के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे. Okay, now remember ऑक्सीजन का लेते हैं. ठीक, ऑक्सीजन फॉर्मेशन हम एक्सप्लेन करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ O2 बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन सेलियंट फीचर वन बाय वन हम इसी के साथ ही पढ़ेंगे, तो आपको याद समझ में आएगा, या तो ऐसे ही बोलूँगी तो समझ में नहीं आएगा. दिस इज़ वन ऑक्सीजन एटम, दिस इज़ अनदर ऑक्सीजन एटम. ओके, दिस इज़ द ऑक्सीजन एटम, दे कंबाइन, एक कंबाइन होगा तो क्या बनेगा? O2 बनेगा. दैट मीन्स मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड. एंड हियर द एटमिक, दिस इज द atomic orbitals of this oxygen, and this is the atomic orbital of this oxygen, and both are going to combine and give you a molecular orbital. देखेंगे, let's see how. अभी यहाँ पे first है, we will write in the increasing order of their energy. That means सबसे lowest energy इसके, हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे. That means energy should be from the down towards the, नीचे से ऊपर की तरफ energy रहेगा. That means we are following here the Aufbau rule. यहाँ that means molecular orbital theory, we are it applicable to Aufbau rule. Aufbau rule क्या कहता है? The electron is filled in increasing order of their energy. तो सबसे पहले 1s2 हम लिखेंगे. ठीक, तो यहाँ पे भी एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ पे भी क्या होगा? इस ऑक्सीजन के लिए 1s2 होगा. ठीक, नेक्स्ट 2s2, यहाँ पे भी 2s2, नेक्स्ट 2p4, 2p4. Okay, here also 2p4. Now let's combine both. अभी यहाँ पे मैंने ऑर्बिटल डायग्राम बना दिया, यहाँ पे बना दिया 2. ठीक, ये बना दिया, ये बना दिया. And here 2 electron is there, here also 2 electron is there, and this atomic orbital is going to combine. Combine होके कितना बनेगा? 2 बनना चाहिए. 2 एटम, क्योंकि हमने पढ़ा क्या है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा.
बट हियर रिमेंबर ऐसे कॉम्बिनेशन नहीं होगा, हियर कॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस इन 2 ways. One is by the addition and another is by the subtraction of the wave function of individual atom. If this is the wave function of one of the atom and if this is the wave function of the another atom, then it is given by the molecular orbital, it is given by the wave function of one plus and minus by wave function of the second. ठीक है, तो ऐसे दे, that means it is given by the linear combination of atomic orbital by the addition and subtraction or subtraction of the wave function of the individual atoms. ओके, अभी यहाँ पे हम देखेंगे अगर ऐड हो रहा है तो हियर इट इज डिनोटेड बाय, इट इज कॉल्ड द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इट इज कॉल्ड द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी जो है लेस रहता है कंपेयर टू द एटॉमिक ऑर्बिटल. एंड द वन विच इज फॉर्म बाय द सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे मीटर देती हूँ, द वन विच इज फॉर्म बाय द सब्ट्रैक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, दैट इज कॉल्ड द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ठीक है, और इसका जो एनर्जी है हमेशा ज़्यादा रहता है कंपेयर टू द एटॉमिक ऑर्बिटल, थोड़ा ज़्यादा ही हायर रहता है बिकॉज द डिस्टेबलाइजेशन ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज मोर प्रोनाउंस देन कंपेयर टू द स्टेबलाइजिंग एनर्जी ऑफ स्टेबलाइजेशन इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो जब हम बनाएंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्योंकि 2 बना है तो 2 बनाना है आपको. ओके, दोनों मैंने बना दिया, जस्ट पॉइंट आउट ऐसे कर दो, उसके बाद जोड़ दो, दैट्स ऑल. एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? टोटल 4, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे. तो ये क्या होगा? बॉन्डिंग. बॉन्डिंग के लिए यू विल राइट सिग्मा बॉन्ड. किस टाइप का बॉन्ड है? सिग्मा 1s2. एंड हियर एंटी बॉन्डिंग के लिए यू विल रिप्रेजेंट बाई सिग्मा स्टार, एस्ट्रिक, एस्ट्रिक डालते हैं 1s2. ठीक है, इन द वे सेम वे वी हैव टू डू फॉर 2s2. 2s2 के लिए भी सेम करेंगे. यहाँ पे मैंने बनाया 2s2, ठीक, नीचे and ऊपर. Okay, in this way you will combine it. And here how many electrons? 2 electrons. Here 2 electrons. Here again they total 4 electron. तो electrons का filling कैसे हो रहा है? According to, yes, it's take place according to the rule. That means lower energy में पहले गया, then higher energy. और कैसे हो रहा है? हम तीनों रूल को फॉलो कर रहे हैं. हंस रूल भी फॉलो कर रहे हैं, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल भी फॉलो कर रहे हैं. यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो है ईच सबशेल्स जो है ईच ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट ओनली 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2 देंगे, उसके बाद ही नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा. ठीक हो गया. दिस वन इज बॉन्डिंग 2s2, दिस वन इज एंटी बॉन्डिंग 2s2. नाउ कम्स द p4 का. p4 हाउ मेनी ऑर्बिटल इज देयर फॉर p सबशेल में? कितने ऑर्बिटल से? 3 है. ठीक है, तो यहाँ में भी इस केस में भी p में कितने हैं? 3 है. Okay, how many electrons are there? 4. That means 1, 2, 3, 4. और इस केस में भी 1, 2, 3, 4. ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फिलिंग जो है आप लाइन से करेंगे, यहाँ मैंने ऐसे नहीं किया. अभी नेक्स्ट टोटल कितने ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने चाहिए? टोटल 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होने चाहिए. ओके, बट यहाँ पे जो जैसे यहाँ पे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बना, यहाँ वहाँ पे भी सेम होगा. बॉन्डिंग 3 होगा, एंटी बॉन्डिंग भी 3 होगा. और यहाँ पे तीनों हम ऐसे भी नहीं बनाएंगे, तीनों एक साथ नहीं बनाना है क्योंकि तीनों को एनर्जी डीजनरेट नहीं है. तीनों को, ऑल द 3 डू नॉट हैव द सेम एनर्जी. यहाँ पे याद रखना है इन केस ऑफ ऑक्सीजन, फ्लोरीन, वहाँ पे जो है पहले जो है Z आएगा, देन कम्स द 2 px एंड py. पहले Z बनाएंगे, उसके बाद आएगा 2. Z means this one is sigma 2p z, okay, and this one is pi 2px and pi 2py. pi क्यों है? Because here the overlapping takes place side wise. ठीक है, यहाँ पे overlapping कैसे हुआ? Side wise overlapping हुआ. और ऊपर में सेम, in the same way here और pz ऊपर में आएगा और यहाँ पे भी ऐसे आएगा. तो दिस वन इज पाई, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग है तो पाई एस्ट्रिक 2px, पाई एस्ट्रिक
2p y and last is the sigma star 2p z. ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग कैसे करेंगे? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है, याद रखना, आप टोटल कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन कितना है? 8 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 4 यहाँ 4 वहाँ, तो हम फिल करेंगे 1 2। अभी नेक्स्ट जो है डीजनरेट ऑर्बिटल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 देंगे, फिर देन 2, देन नेक्स्ट 3, नेक्स्ट ओनली 4। ओके, एक साथ दोनों में नहीं डाल देंगे इलेक्ट्रॉन्स। अभी 8 है तो दैट मीन्स 2 और बचा हुआ है, दैट मीन्स कैसे करेंगे? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो ये हो गया। नाउ इट डिस्क्राइब्स द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2। तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कैसे पता चला? इन द ट्यूब हियर यू विल फाइंड इट हैज़, यहाँ पे जो है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इन पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py एंड डिबॉन्डिंग में। तो ये डिस्क्राइब करता है कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2 का। ठीक है, तो यहाँ पे हम फाइंड यूजिंग दिस वन यू कैन फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर। तो अभी यहाँ पे सेलियंट फीचर्स हम बता सकते हैं। व्हाट आर द सेलियंट फीचर्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी? फर्स्ट, the linear combination takes place by the addition and subtraction of the wave function of individual atoms. Okay, now next is that the molecular orbital of lower energy is known as bonding molecular orbital, and that of higher energy it is called the anti-bonding molecular orbital. And here we are following all the 3 rules, that is of Bohr rule, energy के अनुसार भर रहा है, then Pauli exclusive principles and Huns rule. ओके, देन हंस रूल मीन्स द डिजेनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल रहेगा, देन ओनली द पैरिंग विल टेक प्लेस। ओके, नाउ द शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स जो है इट इज़ गवर्न्ड बाय द एटॉमिक ऑर्बिटल। किस टाइप के एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं? एसएस ओवरलैपिंग हो रहा है कि पीपी ओवरलैपिंग कर रहा है? तो दिस इज अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कैसे ऑक्सीजन का जो है सेलियंट फीचर्स, एंड दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। दिस इज अबाउट द ऑक्सीजन। अभी नाइट्रोजन एंड द एटॉमिक नंबर लेस देन दैट, तो यहाँ पे जो है चेंजेस आएगा ओनली अमॉन्ग दिस। तो एनर्जी जो है इसका जो है हियर द एनर्जी इज लेसर टू सिग्मा 2pz का जो है एनर्जी लेसर है इन दिस केस देन कंपेयर टू पाई 2px, बट इन केस ऑफ नाइट्रोजन कार्बन देयर यू विल फाइंड इसका एनर्जी जो ज़्यादा है, पाई px 2px एंड पाई 2py का जो एनर्जी है लेसर है। तो वहाँ पे हम ये नीचे बनाएंगे और ये वाला ऊपर बनाएंगे। रिमेनिंग ऑल आ सेम ही तरह से आपको बनाना है, लिखना है। ओके, डायग्राम आपको बनाना है। आफ्टर मेकिंग द डायग्राम यू हैव टू फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर। ओके, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं? बॉन्ड ऑर्डर इज गिवन बाय हाफ द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाफ द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्ड ऑर्डर आप कैलकुलेट कर सकते हैं हाउ? हाफ बॉन्डिंग का कितना है? बॉन्डिंग का, अब बॉन्डिंग का काउंट करेंगे। हाउ मेनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट मीन्स 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग का कितना है? 1 2 3 4 5 6, हाफ इंटू 4, दैट मीन्स इट इज 2। द बॉन्ड ऑर्डर इज 2। होप करती हूँ कि आज का क्लास जो है आपको समझ में आया होगा। कल के लिए असाइनमेंट देखिए।